I'm starting the class. So last class we have discussed relative adverbs, okay, and interrogative adverbs. And today we'll be discussing conjunctive adverbs. I believe that also we have discussed, but briefly just to remind you, I will tell everything. Simple adverbs, there are three types of adverbs: simple adverb, relative adverb, and interrogative adverb. Simple adverb have 11 types, basically depending on what kind of information you are giving through adverbs about the verb or adjective, or what kind of, you can say, modification is being done by the adverb in the sentence is this, describes the type of simple adverb that is used in the sentence. Relative adverbs is the one that modifies not only the verb on the sentence in the sentence, but also it reflects back to your antecedent. That means the word present before your relative adverb in the sentence is, you can say, reflected back by the relative adverb present in the sentence. And the most important thing that you have to keep in mind when you are describing the relative adverb and interrogative adverb is both the adverbs use the same set of words. यानी कि आप adverb अगर रिलेटिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं या फिर आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए ही बोथ रिलेटिव एडवर्ब्स या इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोथ ऑफ देम यूज द सेम सेट ऑफ वर्ड. एक ही सेट ऑफ वर्ड होते हैं जो दोनों ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when, how, why, what, where, these words are used for both relative adverb and interrogative adverb. The only difference is that when there's an antecedent present in the sentence, the verb is relative adverb. That means adverb जो है आपका उससे पहले अगर कुछ भी आता है, if there is anything before your adverbs, that means the questions, ठीक है. अगर आपके क्वेश्चन नहीं है, when, why, what, how से आपके क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले कुछ आ रहा है, some information is given before that, तो वो आपका रिफ्लेक्ट करता है. दैट मीन्स द एंटीसीडेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, एंड इफ an antecedent is present in the sentence, then the adverb is relative adverb. If there is no antecedent, that means in words के आगे when, where, how, why, in words के आगे कुछ भी नहीं लगा है, they are in the starting of the sentence, that means they are forming a question, query about something that is being happening or that has happened, any inquiry related to your work being done, then it is called interrogative adverb. Conjunctive adverb is when you join two independent clauses. That means there are two independent clauses that does not have to be like, जरूरी नहीं है कि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो, बट दे आर ऑन द सेम टॉपिक. यानी कि जो भी मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं, वो मैसेज का जो बेस रहेगा वो दोनों क्लॉजेस के लिए सेम रहेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ म्यूजिक आई लव, then both the clauses will have my likes and dislikes about the music. If I'm talking about the students that are attending the function or not, then both the clauses have the same information that is related to the attendance of the students in the function. matlab both clause contains similar, if you can say, contains similar information. The base information is similar about that. And उन दोनों independent clause को join करने के लिए आप conjunctive adverb use करते हैं. It is also used for, you can say, कि सिर्फ joining ही नहीं करता है, वो एक clean transaction दिखाता है. यानी कि पहले part of clause से दूसरे part of clause तक जाने के लिए दोनों ही clause के बीच का एक gradual मूवमेंट होता है. यानी कि ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि आप फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज में आप बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ क्लॉज में आप फंक्शन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं. नहीं, द बेस इंफॉर्मेशन विल बी सेम एंड द ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथ विद द हेल्प ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स. नाउ नेक्स्ट इज योर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको या तो आप सेम फॉर्मेट में, यानी कि बिना कोई चेंज किए, वो सेम वर्ड आप एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में,
या फिर एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। सेकेंड थिंग, आप कुछ मॉडिफिकेशन करके, यानी कि कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ओमिट कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करके वर्ड का, आप उसको एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं। सो एनी मॉडिफिकेशन कैन बी डन in a number of words to change the type of, or you can say part of speech that is represented by the verb, sorry, adverb or the word. अब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आर बोथ मॉडिफाइंग वर्ड्स, यानी कि दोनों ही वर्ड्स क्या होते हैं, दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सेंटेंस के को किसी एक पार्ट को वो मॉडिफाई, यानी कि उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? एडजेक्टिव जो होता है वो आपका प्रोनाउन या नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। ओनली द प्रोनाउन और नाउन इन द सेंटेंस। द रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कि आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्लॉजेस हो गया, या पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए आपका एडवर्ब यूज होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इज adjective is used to modify the noun and pronoun in this sentence, and adverb is used to modify the other parts remaining by the if you omit the noun and pronoun in this sentence, the remaining part, verb, adjective, another adverb, clauses, or the whole sentence can be modified with the help of adverb. It's up to you. If you can start that, then it's okay, otherwise you can join. So अगर आप पहले सेंटेंस में देखें, Shalini walks slow out of the classroom, this is incorrect, whereas Shalini walked slowly out of the classroom is correct. Why is it so? Why is it so? आराम से बच्चे। What happened? Is there a problem with the wire or what? अच्छा, it is coming. हाँ. Have you attended my last class? No. Okay. So I have given a brief description. You can watch the video or you can ask. Yes. So as you can see, the first sentence, number one sentence, Shalini walks slowly out of the classroom is incorrect. And the second sentence, Shalini walked slowly out of the sentence is correct. What is the difference between two sentences? What makes slow incorrect in that place and what makes slowly correct in that place? इस सेंटेंस में स्लो गलत है, स्लोली सही है। Slow is an adjective. Slowly is an adverb. That means यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए क्योंकि आप वॉकिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट मीन्स आप वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई काम हो रहा है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए, और काम को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एडवर्ब ही यूज होता है। सो स्लोली इज द करेक्ट आंसर फॉर, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस. Similarly, he tried real hard to score the first position and he tried really hard to score the first position. Both the sentences contains, one contains an adjective and second contains a adverb. Okay. I'm going to repeat it again since you have not heard it. एडवर्ब और एडजेक्टिव में दोनों में एक ही डिफरेंस है, सिमिलैरिटी है कि वो दोनों मॉडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं. Any part of sentence can be modified, a number of part of sentence can be modified both with adjective and adverb. Difference सिर्फ इतना है कि adjective जो है
वो नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर सकता है और किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकता। एडवर्ब में ये चीज है कि वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है, कोई और एडवर्ब है, क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, या फिर जो पूरा सेंटेंस है उसको मॉडिफाई करने के लिए आप एडवर्ब यूज करते हैं। सो वन पार्ट दैट मीन्स योर noun and pronoun is modified by the adjective and the other parts are modified by an adverb. Now look at the second example. यहाँ पर ए बी सी डी वाले जो एग्जाम्पल हैं इसमें देखिए, ही रैन फास्ट एंड ही इज अ फास्ट रनर। हाउ कैन यू से दैट वन इज एन एडजेक्टिव एंड वन इज एन एडवर्ब? आपको कैसे पता चलेगा कि पहला सेंटेंस में एडवर्ब है और दूसरा सेंटेंस में एडजेक्टिव है? जस्ट लुक एट द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज। जो फास्ट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ही रैन फास्ट में फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही रैन फास्ट में फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? नहीं बच्चे, क्या एडवर्ब तो है ही, वो मुझे पता है, वो तो लिखा हुआ ही है कि एडवर्ब है, बट वो एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्या फास्ट है? रन, एग्जैक्टली, द वर्ब इन द सेंटेंस इज बीइंग मॉडिफाइड। ओके, ना यहाँ सेकेंड सेंटेंस है, ही इज अ फास्ट रनर। नहीं, यहाँ पर फास्ट जो है वो रनर को मॉडिफाई कर रहा है। तो वो रनर क्या होता है? रनर तेज दौड़ने वाला, दैट मीन्स इट इज अ नाउन, राइट? तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। सिमिलरली शी हैज ओनली 2 बुक्स, दैट मीन्स यहाँ पर कितनी किताबें हैं उसके पास? 2 किताबें, यानी कि आपका एडवर्ब ऑफ नंबर, कितना नंबर ऑफ वर्ब है उसके पास या कितने नंबर ऑफ नाउन्स है वो बता रहा है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स है नाउन है, नाउन है तो ओनली बिकम्स एडजेक्टिव. So this is how you can differentiate a same word that is being used as an adverb or as an adjective in the sentence. अगर adverb है इसका मतलब कि sentence का जो verb है उसको modify कर रहा है, या फिर हो सकता है कि adjective को modify कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि पूरे sentence को modify कर रहा हो. बट अगर adjective है तो वो सिर्फ किसी नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा हो या फिर एक प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर रहा हो. अगर यहाँ सेंटेंस में जो ही और शी यूज हुआ है उसको मॉडिफाई करने वाला कोई वर्ड होता तो वो भी एडजेक्टिव कहलाता. रनर हो गया, डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स हो गया, डोर हो गया, वर्कर हो गया, दे आर ऑल कॉमन. यू कैन से रनर्स एंड डोर्स एंड वर्कर्स आर कॉमन नाउन. ठीक है. डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन दैट डिस्क्राइब्स यू कैन से अ पर्टिकुलर, नॉट अ पर्टिकुलर गर्ल. ठीक है, उनके लिए एक पर्टिकुलर गर्ल है, बट डॉटर तो एक कॉमन नाउन ही है, तो वो भी आपका कॉमन नाउन हो गया. दैट मीन्स दे आर डिस्क्राइबिंग एनी टाइप ऑफ नाउन, तो वहां पर भी आपका एडजेक्टिव ही यूज होगा. देन लास्ट में यहाँ पर दिया गया है कि कौन से वर्ड्स को आप मॉडिफाई करके एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं. दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग मोस्ट एज एन एडजेक्टिव, आप ऑलमोस्ट लगाकर उसमें एडवर्ब बना सकते हैं. इजी अगर एडजेक्टिव है तो इजीली बनाकर एडवर्ब बना सकते हैं. गुड अगर एडजेक्टिव है तो वेल लिखकर आप उसमें एडवर्ब बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अंतर बता रही हूँ मैं. ठीक है, शी इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, वो वहां पर क्या मॉडिफाई हो रहा है? शी इज अ गुड स्टूडेंट. क्या मॉडिफाई हो रहा है वहां पर? नहीं नहीं, वो डिफरेंस वैसे नहीं होता है. ये यहाँ पर लिखा गया है कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि शी इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है वहां पर? स्टूडेंट को. स्टूडेंट क्या हुआ आपका? नाउन हुआ, राइट? तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वहां पर एडजेक्टिव है. ये जो सेंटेंस है, दिस बुक इज वेल रिटन, वेल किसको यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है? 4 नंबर में एडवर्ब ऑफ मैनर. नहीं, रिटन को. हाउ इज इट रिटन? वेल रिटन, राइट? तो जब रिटन यानी कि कोई भी काम को मॉडिफाई कर रहा है तब वो एडवर्ब कहलाएगा. ओके, दैट इज हाउ यू विल गेट. ऐसा जरूरी नहीं है कि वही चीज रहे. अगर आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है वो नाउन का हो रहा है या प्रोनाउन का हो रहा है तो वो एडवर्ब है.
अगर नाउन और प्रोनाउन का नहीं हो रहा है तो बेसिकली 90% ऑफ द केस यू कैन ब्लाइंडली से दैट इट इज एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, वो सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसको भी मॉडिफाई करेगा, अगर कोई क्लॉज है या फ्रेज है उसको भी मॉडिफाई करेगा, अगर सेंटेंस के आगे लग गया तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा. So if you are describing or modifying a noun or a pronoun, then it is definitely adjective. If that is not the case, then it's certainly an adverb. Okay. Okay. So next, what it is, let's see. Acha, I believe that is the extent of till now. अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें किसी को डाउट है या मैं रिवाइज करना चाहो तो बोलो, मैं रिवाइज करवा दूं शुरू से. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एडवर्ब में यही है कि एडवर्ब जो होता है वो वो मॉडिफाई क्या करता है, मॉडिफाई करता है आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, फ्रेज को, क्लॉज को, और अगर सेंटेंस के आगे लग गया तो वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है. सेकेंड थिंग, मोस्टली एडवर्ब जो होते हैं उसमें आपको बैक में यानी कि एंडिंग में एल वाई लगा हुआ दिखेगा, बट दैट डजंट मीन कि सारे एल वाई से एंड होने वाले वर्ड एडवर्ब हो, या फिर जो एल वाई से एंड नहीं हो रहा है वो एडवर्ब नहीं हो. इट इज जस्ट, यू कैन से इट इज जस्ट एन एक्रेंस दैट बार बार होती है. ऐसा नॉर्मली पाया जाता है कि सारे वर्ड, मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उसमें एल वाई लगता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है. इट डजंट सिग्निफाइज एनीथिंग. What is the difference between clause and phrase? ब्लर दिख रहा है. What is the difference between clause and phrase? दोनों का ही मतलब ये होता है कि हाफ पोर्शन और यू कैन से पार्शियल मीनिंग बताते हैं. क्लॉज और जो फ्रेज है दोनों ही आपको पार्शियल मीनिंग बताते हैं, यानी कि पूरे सेंटेंस आप नहीं पता पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है. यू कैन नॉट गेट द होल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. ठीक है. बट क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है कि क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फ्रेज डज नॉट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. फ्रेज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी होता है, मोस्टली नहीं होता है. क्लॉज में आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्टिव एडवर्ब्स जब पढ़ाए थे, तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स में क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कनेक्टेड थ्रू सम वर्ड्स दैट आर कंजंक्टिव एडवर्ब्स. तो यहाँ पर जो पहला फ्रेज है और दूसरा फ्रेज है दोनों को देखिए. माई क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक. देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, राइट. सब्जेक्ट आपका माई क्लासेस है, वर्ब क्या है, लिसन्स. Another part of another independent clause is he also likes jazz and rock music. He is present, that means that becomes the subject, and likes is your verb. So always a clause will contain a subject and a verb. एक subject और verb हमेशा उसमें रहेगा. So if a clause, जो एक particular clause है, वही एक पूरे sentence को या एक कोई verb को या एक कोई adjective को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्लॉज पूरा आपका एज एन एडवर्ब एक्ट करेगा और उसको बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज. अगर आपका कोई फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन से, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको आप यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर होल सेंटेंस. तो एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है कि जो आपको ये बताए कि काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया, समथिंग अबाउट योर वर्क, जो भी काम किया जा रहा है उसके बारे में सम पार्शियल इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू द एडवर्बियल फ्रेज. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या पता चलेगा कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब जो एडवर्बियल फ्रेज है उसमें हमेशा एक प्रेपोजिशन प्रेजेंट रहता है.
There's always an preposition present in the adverbial phrase. That is why they are also called prepositional phrase. One thing that you have to remember is adverbs can be modified by can modify an adjective, but an adjective cannot modify an adverb. सिंस एडजेक्टिव जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को अदर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई एडजेक्टिव कैन नॉट मॉडिफाई एन एडवर्ब, बट एडवर्ब कैन मॉडिफाई एनीथिंग दैट इज नॉट योर नाउन और प्रोनाउन. यानी कि अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, देन इट कैन बी मॉडिफाइड विद एन एडवर्ब. सो एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, but adjective cannot be used to modify an adverb. There are three types of adverb: simple, relative and interrogative. Simple आपका कोई भी information जो आपको अपने verb के बारे में पता चलता है, doesn't matter what kind of information it is, time हो, place हो, you can say कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया, any information that you can find regarding your verb or work that is being done in the sentence is some type of simple adverb. There are 11 types of simple adverb you can find. ठीक है. relative adverb क्या होता है? relative adverb होता है जहां पर आपका verb modify करने की वजह, मतलब modify भी करता है और वो adverb antecedent को भी reflect back करता है. यानी कि whatever antecedent का definition होता है that which comes before, यानी कि किसी चीज से पहले आने वाला उसको एंटीसीडेंट कहेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा? एंटीसीडेंट. रिलेटिव एडवर्ब से पहले आने वाला जो वर्ड होगा उसको एंटीसीडेंट कहेंगे. ओके. सो वो रिफ्लेक्टिव एडवर्ब क्या होगा? रिफ्लेक्टिव एडवर्ब में तीन मेन चीजें आपको याद रखनी है. पहली ये कि वहां पर दो वर्ब प्रेजेंट होंगे. सेंटेंस में दो वर्ब प्रेजेंट होंगे. सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे और दो वर्ब प्रेजेंट होंगे. सेकेंड वाला जो वर्ब है आपका रिलेटिव एडवर्ब उसी को मॉडिफाई कर रहा है और रिलेटिव एडवर्ब से पहले आने वाले वर्ड एंटीसीडेंट कहलाएंगे. तो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज होते हैं रिलेटिव एडवर्ब के लिए और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के लिए, दोनों ही वर्ड्स सेम होते हैं. इफ यू अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं या फिर यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखा हुआ भी है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाटएवर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये रिलेटिव एडवर्ब के लिए भी यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड के लिए भी यूज होते हैं. तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो रिलेटिव एडवर्ब है या इंटेरोगेटिव एडवर्ब है? अगर आपके सेंटेंस में इन वर्ड से पहले कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन दैट बिकम्स एन एंटीसीडेंट, एंड इफ देयर इज एन एंटीसीडेंट प्रेजेंट इन द सेंटेंस दैट मीन्स द वर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब. इफ देयर इज नथिंग प्रेजेंट बिफोर दीज वर्ड्स, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनके आगे कुछ भी नहीं लगा, दैट मीन्स दे आर क्वेश्चंस, दे आर इंक्वायरिंग अबाउट योर वर्क. तो इंक्वायरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा. इंटेरोगेटिव एडवर्ब का कोई भी सेंटेंस हो उसका आंसर हमेशा एडवर्ब और सिंपल एडवर्ब का कोई ना कोई टाइप होता है. व्हेन डिड ही केम, इट इज आस्क्ड अबाउट द टाइमिंग. अगर इसका आंसर लिखेंगे तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा आंसर में. व्हाई आर यू लेट, यू आर आस्क्ड अबाउट द रीजन ऑफ बीइंग लेट. तो उसका जो आंसर होगा उसमें आपका एडवर्ब ऑफ रीजन आएगा. दैट मीन्स एवरी आंसर दैट यू every question that you answer in interrogative adverb that contains a type of simple adverb. Any doubt till now? कोई डाउट नहीं है? तो ये फाइल जो है ये इतनी खत्म हो गई है. ठीक है. इसके आगे का जो है, ठीक है, इसके आगे का आपको ये फाइल मैं सेंड कर दूंगी. इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. ठीक है. और अभी तक कुछ भी पढ़ाया है उसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास तक मुझसे पूछ सकता है. ठीक है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज, मैंने ये वर्ब का फाइल भेज दिया, वर्ब का एक्सरसाइज का फाइल भेज दिया आपके ग्रुप में. भेज दिया है तो उसको क्वेश्चन बनाइए. जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिएगा. ठीक है. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बिकॉज
टाइप भी बहुत सारे थे, हमने पढ़े भी थे। ठीक है, वो सारे चीज के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप ऑफ वर्ब्स का कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस फॉर्म में यूज करना है, तो सारी चीजों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस बताए गए हैं, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आई एम गिविंग यू इनफ टाइम। ठीक है, आराम से बनाइए, जो भी डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी।